Now today we have a study very important topic. We have already discussed about all these things, what is an intermediate code generator and how it is work. And now we have defined again just only 1-2 minute just recap. And whatever we have a recap, that is a different approach. Why it is known as the intermediate code. Okay. And previously we have already discussed that the intermediate code generation, the most responsible for provide the temporary code, where the temporary code is the required, it's provide the let me show why it is known as the intermediate code. And we already know the section of this. Yes, let me share this one. Yes, try to understand this one. This is why it is known as the intermediate code, and which one is the front end and which one is the back end. Because let me take one pointer. With the help of a pointer, we already know some lexical analyzer. Okay, the first phase is the lexical analyzer. After that, syntax analyzer. Clear? And after that, semantic analyzer. Yes, that is a semantic. I mentioned here the SE for the differentiation purpose. Semantic analyzer. And after the semantic analyzer, what's the next phase? Anyone? Please respond fast. Yes, lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, and yes, Shivendra, intermediate code generator. Code generator. Yes, next one. Batao. Have you remember or not? Lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code generator, code optimization. Okay. और बताओ आगे. Yes. Assembly code generator. Right. After that, we have a converted into assembly language or machine level language. Okay. See, try to understand what is the role of this why it is known as the intermediate code generator. ध्यान से समझना है इसको. Why it is known as intermediate? All these things known as the front end. Okay. This is known as the This is known as the front end. पढ़ा होगा ना? This is the known as the front end. ठीक है. Above than this one, here we have a find out the source code. Whatever we have a mention right at a screen, it is known as the source code. The source code go for the lexical analyzer. Clear? Lexical analyzer. What is the role of a lexical analyzer? Converted the whole the program in terms of a token. Okay. And यहाँ पे ऐसे बना लो. That is symbol table. Okay. ST we have mentioned the symbol table. ठीक. And we have already know कि whatever table we have it is that particular phase associated to all of you. ठीक है, सारे फेज से ये कनेक्टेड होता है, पता है ना ये तो हम लोगों को. ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये all the phases converted to the symbol table. अब try to understand and here the error handler होता है, वो भी सारे फेज से कनेक्टेड होता है. Try to understand this one, which is the front end. This above that, this intermediate code generator is known as the front end. क्या बोलते हैं इसको? फ्रंट एंड. ठीक है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि व्हाई इट इज नोन एज द इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. ठीक है, प्रैक्टिकल काम क्या करता है? इट्स प्रोवाइड द टेम्पोररी रजिस्टर. ये इसका एक्चुअल वर्क है. और अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसको इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेन रोल प्ले करता है इसको सोर्स एंड बोलते हैं. एंड बिलो देन दिस वन इज द नोन एज बैक एंड. ठीक है, दैट इज नोन एज द बैक. तो इट्स प्रोवाइड द इंटरफेस. जो फर्स्ट लाइन है जो आपको कल बताई गई थी, ठीक है, दैट इज अ बैक एंड. ठीक, इट्स प्रोवाइड द देखिए ये लाइन पढ़िए, दिस वन इंटरमीडिएट कोड इज द इंटरमीडिएट. देखिए ये क्या है? इंटरफेस. द इंटरमीडिएट कोड द इंटरफेस बिटवीन दिस वन फ्रंट एंड एंड बैक एंड. इज इट क्लियर बाय एवरीवन दैट इंटरमीडिएट कोड is established as an interface between front end and back end. What is the front end? The lexical analyzer to semantic analyzer, all the phase associated in the front end. Okay, यहाँ पे mention नहीं है PPT में, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको. And code generator, this is also known as the machine code. ठीक है, machine executable code. You have mentioned like the MC. ठीक है, the machine code. After the intermediate code generator, the code optimization and machine code work as a backend.
इज इट क्लियर? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. इट इज द इंटरमीडिएट फेज बिटवीन सोर्स कोड टू मशीन कोड. इज इट क्लियर? यस, प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर. ठीक है, चलो नेक्स्ट. ये टॉपिक क्लियर हो गया था. सेकंड क्या लिखा हुआ है? आइडियली डिटेल्स द सोर्स लैंग्वेज आर confined to front end and detail target to the back end. The same thing कि as an intermediate phase करता है. There is no any other something. And it is the chapter we have described the study of the intermediate representation, static type checking and intermediate code generator. Okay, यहाँ तक clear है सबको? या have you read out? Please respond. Are you able to understand what is a back end, what is a front end, and what is a here right now I am focus the what. ठीक है, अभी तक हमने क्या एक्सप्लेन किया? व्हाट. अभी हाउ इसके बात करेंगे. किसकी व्हाट की बात हो रही है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. ये है क्या? इज इट क्लियर? सबको व्हाट समझ में आया? किसकी व्हाट की बात हो रही है? दिस वन, इंटरमीडिएट कोड क्या होता है? इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड क्विकली, जल्दी बताओ फिर आगे प्रोसीड करें. ये क्या होता है? ये चीज समझ में आई सबको? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड. I think I have shared the screen, no? That's why. Yes, please. आप बोल सकते हैं, ठीक है? Yes. Is it clear by everyone? Yes. सबको समझ में आया? Raise your hand if you are clear. Understand this one. ठीक है? Is it clear? Please respond fast. Why is that too much slow? Yes, Seven is clear. प्रतिभा is clear. ठीक है. चलो अब ऐसे बोल दिया करो जैसे मैं आगे प्रोसीड करता हूँ. समझते हैं इसको, ठीक है? इट्स द इम्पोर्टेंट एंड समझते हैं. अब देखो हमने पिछले में क्या पढ़ा हुआ था? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर. अब नाउ वी हैव ए फोकस द हाउ. हमने क्या समझा यहाँ पे? सॉरी, टेक द पॉइंटर. ओके, ठीक. वी हैव ए अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली ये इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या होता है. इट इज अ सिंपल. It is the vocalizer interface. It is a basic definition. It is the work like an interface between front end and back end. We have also understand what is a front end, what is back end. The up to the lexical analyzer to semantic analyzer considered as a front end, and code optimization to machine code. It is a considered in the back end. And the intermediate code generator provide the interface between all these things. Okay. अब मैं इसके practically बात करता हूँ. ये हो गया what. Next step the how. कि भाई ये interface provide करता कैसे है और क्या करता है ये. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्टेप और फोकस ऑन द हाउ. कैसे करता है ये. ओके, नाउ वी मूव हियर. ठीक. वेरिएंट ऑफ ए सिंटैक्स ट्री. ठीक. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए दिस. दैट इज a basic terminology whatever used in a code optimization and all these things. Try to understand the variant of a syntax tree. Why it is known as the variant? Everybody understand what is the meaning of a variant? सिंटैक्स ट्री हम लोग डिफाइन किए थे. कैसे डिफाइन किए थे? एनीवन? हाउ वी कैन डिफाइन द सिंटैक्स ट्री? यस, शिवेंद्र, हाउ वी हैव डिफाइंड द सिंटैक्स ट्री? डेफिनेशन क्या बताना है? नहीं, अरे नहीं, नॉट ओनली डेफिनेशन. चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ. डेफिनेशन क्या बताना? डेफिनेशन नहीं, मतलब आप क्या समझते हैं सिंटैक्स ट्री से? यस, सिंटैक्स ट्री मतलब कि ऑपरेटर्स होते हैं वो रूट लेवल पे होते हैं, ऑपरेंड होते हैं. वो इसके नहीं अभी इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ की. वेयर इज माय मार्कर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन. ठीक है. देखिए जो सिंटैक्स ट्री होता था, चलो मैं बता देता हूँ. ट्री रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइट. देखिए जो सिंटैक्स ट्री था वो कैसे होता था? जो भी ग्रामर स्टार्ट होता था, ध्यान से समझो यहाँ पे सब लोग. फॉर एग्जाम्पल ई से रिप्रेजेंट करते थे. For example, E is the starting symbol. After that, whatever production is a given, either we have to choose the leftmost derivation or rightmost derivation. Is it clear? ऐसे ही बनाते थे ना. ठीक है, ऐसे मैं बनाता चला जाता था based on a grammar, based on a preference, whatever rule we have defined, हम इस तरीके से बनाते चले जाते थे. Is it clear है ना? ऐसे मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ. ठीक है, that is a syntax tree. ठीक. Here, why it is known as the variant? Variant means the number of a variation. Okay. There the
कि that is a one way to represent the syntax tree. The another way to represent the syntax tree for the purpose of a evaluation. इसका मतलब समझो कि जब भी मैं किसी चीज को वेरिएंट को या किसी चीज को कैटेगराइज करता हूँ, यार वेरिएंट का क्या मतलब है? डिफरेंट फॉर्म. ओके, डिफरेंट फॉर्म का क्या मतलब होता है? जैसे मैं, आपकी क्लास है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं कह रहा हूँ कि शिवेंद्र इज अ गुड बॉय, ठीक. अब मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा. गुड इज अ वेरी वेग टर्म्स. ओके, तो ये बताना पड़ेगा कि शिवन स्मार्ट लगता है इसलिए मैं गुड कह रहा हूँ. ओके, उसकी हाइट अच्छी है, गुड लुकिंग है, ठीक है, स्पोर्ट्स में बेटर है, और इट मे बी वी हैव कंसीडर एज अ गुड बेस्ड ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस. ओके, कि अच्छा परसेंटेज है, या मे बी परसेंटेज अच्छा नहीं है तो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेटर है, जो भी चीज एक्सप्लेन करो लॉजिकली अच्छे से समझता है, एक डिफरेंट वे रखता है क्लास में, ठीक है. इट्स नॉट द ओनली शिवन, मे बी सम वंशिका एंड प्रतिभा आल्सो, ठीक है. तो अगर मैं ये कैटेगराइज कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? एक पैरामीटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक. तो इसका मतलब समझिए कि वेरिएंट ऑफ अ सिंटैक्स ट्री का क्या मतलब है? एक मैंने डिफरेंट वेरिएंट, मतलब इसको दूसरे फॉर्म में कैसे कंसीडर कर सकता है, तो उन्होंने क्या किया? इवेल्युएशन पैरामीटर को प्रेफरेंस पे रखा है. ओके, so that's why here is the expression, the evaluation, the name of that particular variant of a syntax tree, DAG, direct acyclic graph. The direct acyclic graph, what is the benefit of this one? Here we have a choose operator as a root and leaf node as a operand. ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ what is a direct acyclic graph. मैं किसी भी एक्सप्रेशन को जिसको रिप्रेजेंट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज आवर एक्सप्रेशन, दिस वन, ठीक है. यहाँ पे इसको इवेल्युएट करने के लिए हम क्या करें? ऑपरेटर एज ए रूट, whenever we have a selected operator as a root and operand, these are our operand, the, ठीक है, thing b is always the leaf node. ये हमारा ऑपरेंट है. कैसे करता है मैं कल भी बताया था इसको, तो इस पे टाइम थोड़ा सा कम देंगे और आगे मूव करेंगे, ठीक है. ये ऑपरेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चूज दिस वन बिकॉज द ब्रैकेट एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, ठीक. This keep that will be the maximum priority, so we have selected this one b minus c and we have chosen b minus c here. So again we have calculated this one and this one, and after that we have add this one. Okay, कंबाइन करके ये फॉर्म कर दिया. Here the same operand is required, तो यहाँ पे भी सेम होता है, हम सीधे सीधे उसको कनेक्ट कर देते हैं. तो यहाँ पे हमें एक चीज, the name of that particular diagram is the direct acyclic graph. लिखना चाहो तो लिख लो, डैग का फुल फॉर्म ये होता है, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ. अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाई वी हैव ए नीड दिस वन. ओके, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई ये समझता है. सर एक सिंटैक्स ट्री, दिस इज द सिंटैक्स ट्री. ओके, वी हैव ऑलरेडी द सिंटैक्स ट्री, तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन, इसको समझता है. ये हमारे पास जब सिंटैक्स ट्री था जो सारी चीजें बता रहा था, बट हियर व्हाट इज द व्हाई वी हैव यूज्ड दिस वन, इज द सिंटैक्स ट्री. ठीक है, सिंटैक्स ट्री था, तो व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन. एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन, जो बताना चाह रहा है इसकी नीड क्यों है? क्योंकि बिना जरूरत के पढ़ना और उसको पढ़ाना ठीक बात नहीं है. व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द नीड, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस, किसकी जरूरत है नहीं है? यस, प्रतिभा आप बताएंगे. Vanshika? Yes, sir. Yes. What is the need of this one? Direct acyclic graph. What is your observation? सर ये टेम्परेरी वेरिएबल्स असाइन करता है. नहीं, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मतलब कम वेरिएबल्स यूज करता है, मतलब अरे पहले क्वेश्चन सुनिए आप. पहले मैं ये पूछ रहा हूँ डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ की जरूरत क्यों पड़ गई दिस वन, व्हाट इज द नीड ऑफ दिस वन. आप बता रहे हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की बात, मैं उसकी नहीं पूछ रहा हूँ. मैं ये पूछ रहा हूँ कि सिंटैक्स ट्री को यहाँ पे लिखा ना वेरिएंट ऑफ ए सिंटैक्स ट्री, तो सिंटैक्स ट्री का डिफरेंट फॉर्म में मैं डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ को यस रख रहा हूँ, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कॉमन एक्सप्रेशन जो सर दो या ज्यादा बार रिपीट हो रहे होंगे उनको एक बार ही लिखना पड़ेगा. राइट, एक्सीलेंट. ठीक है, तो जो मैक्स, अब देखो यहाँ पे वंशिका ने एकदम राइट रिस्पॉन्ड किया है कि जो भी कॉमन वेरिएंट हम यस रश्मि, सर रश्मि ने रिस्पॉन्ड किया. अच्छा रश्मि ने किया. असल में बेटा मैंने वो वाला क्लोज कर दिया ना, वो पीछे बैकएंड में चल रहा है, अभी पीपीटी ओपन किया मैंने. ठीक है, गुड. तो रश्मि प्रजापति, शायद 2 रश्मि है ना क्लास में? नहीं सर एक ही है.
एक ही रश्मि है, हाँ वेरी गुड रश्मि, ठीक है। चलो रश्मि ने सही रिस्पॉन्ड किया है कि सर देखिए जो कॉमन पार्ट है, जैसे यहाँ पे बी माइनस सी एंड हियर द बी माइनस सी, तो ये देखो, तो हमने क्या किया, बी माइनस सी, इस सर्किल को देखना आप एक बार, इस सर्किल को देखो, बी माइनस सी मैंने एक ही बार किया है, बट एक्सप्रेशन में देखो दो बार है। यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे और दो लाइन में यहाँ पे बना देता हूँ, सेकंड टाइम यहाँ पे, ओके। बट हमने डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ में एक बार यूज किया है, क्यों? दैट्स व्हाई इट इज ए यूज फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पर्पस। ये किसके लिए यूज होता है? ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमाइजेशन? कि भाई मिनिमम रिसोर्स में, ठीक है, मैक्सिमम चीजें मिले, उसी को क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइजेशन। आप पूरा लिख लेना, मैं ऑप्टी करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव मेंशन द डॉट ऑप्टिमाइजेशन, ठीक। द डायरेक्ट साइक्लिक यूज, दैट इज अ टेक्निक यूज फॉर द ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। क्या इसका मतलब है? कि जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी कॉमन है, उसको मैं एक बार डिफाइन करता हूँ। ऑपरेंड भी जितने कॉमन है, देखो ऑपरेटर, देखो ये एक्सप्रेशन कॉमन है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्रेशन इज ए कॉमन। कितना स्मार्ट तरीके से ये ड्रॉ कर रहा है, ये देखना इसका स्मार्टनेस। हाँ, जो भी कॉमन एक्सप्रेशन है उसको भी एक बार ड्रॉ किया है। अब देखो यहाँ पे ए दो बार आया, ए इज कम फ्रॉम हियर, ए इज केम फ्रॉम हियर, ओके। तो ए को भी जो दो वेरिएबल भी दो बार आ रहा है ना, तो देखो यहाँ पे एक ही बार लिखा गया है। दैट इज अ वेरी स्मार्ट टेक्निक, कि मतलब चाहे वो अलग से एक वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं बार बार, या कॉमन एक्सप्रेशन है, सबको क्या कर रहा है? वन टाइम डिफाइन कर रहा है, और पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर रहा है? इवेल्युएट कर रहा है। तो दैट इज अ मोस्ट पावरफुल टेक्निक। व्हाई इट इज अ पावरफुल? because it's the use the minimum number of a temporary variable, or minimum with the help of a minimum number of a variable evaluate the expression. Is it clear? अब जैसे कोई पूछे कि सर डैक है, डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ है, तो सर इस चीज को स्टैक से भी कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ ए स्टैक? यस, इज इट पॉसिबल, ठीक है, इसको हम स्टैक की हेल्प से भी कर सकते हैं। बट व्हाट इज ए, व्हाई वी हैव ए चूज द डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ? ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हियर इज नो लिमिटेशन ऑफ दिस वन, की कॉमन को मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, ठीक है। कोई एडवांस फीचर्स नहीं, कोई स्मार्टनेस नहीं है। अगर दो वेरिएबल लिखा है तो दो वेरिएबल को लिखना होगा, इवेलुएट करना होगा, बिकॉज द स्टैक इज द लिमिटेशन, समथिंग लाइक दैट। वी हैव परफॉर्म ऑपरेशन ओनली टॉप ऑफ ए स्टैक। इज इट क्लियर? टॉप ऑफ स्टैक, ठीक है। एंड देयर इज अ टू बेसिक फिनोमेना हियर वी हैव यूज्ड, ओनली पुश एंड पॉप। दो काम कर सकते हैं, कौन कौन सा? पुश एंड पॉप। तो स्टैक की हेल्प से भी कर सकते हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन वाला काम नहीं होगा। एक्सप्रेशन तो इवेल्युएट हो जाएगा, ये बात तो ठीक है। इज इट क्लियर? सबको समझ आ गया कि सर ने यहाँ पे स्टैक क्यों नहीं चूज किया, सर ने यहाँ पे डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ क्यों चूज किया, व्हाई वी हैव नॉट चूज द सिंटैक्स ट्री। देखिए इतना डिटेल आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट इफ यू नो द होल द बैकग्राउंड डिटेल, तो इट इज ए मच मोर बेनिफिशियल फॉर योर competitive exam and your career growth. Is it clear? सबको समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्ड। यहां तक सबको समझ में आया? यस बोलो तो। यस शिवेंद्र, यस रश्मि, इसके और भी एडवांटेज है। हाँ इसके और भी एडवांटेज हैं। वेरी गुड, बताओ एक और बताओ एडवांटेज। इसमें डीएजी में एक पेरेंट नहीं, दो एक नहीं होगा, ट्री में केवल एक ही पेरेंट होगा। तो इससे मेमोरी का वो हो गया, मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन, राइट। मेमोरी इसीलिए तो बोला है ना इसको ऑप्टिमाइजेशन। शॉर्टर ट्रैवर्सिंग टाइम, राइट, शॉर्टर ट्रैवर्सिंग टाइम। वेरी गुड। और ऑब्जर्वेशन करके बताओ और क्या हो सकता है? बस इसमें एक प्रॉब्लम आएगी कि कॉमन फाइंड करने की। राइट, कॉमन फाइंड करने में प्रॉब्लम आएगी, राइट, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ को यहाँ पे चूज करते हैं। चलो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं आपको, ठीक है। ये क्या है? एसडी, देखो एसडीटी डायरेक्ट सिंटैक्स, जो ट्री था उसको सिंटैक्टिक डायग्राम फॉर क्रिएटिंग द डेक। डेक के लिए कैसे डिफाइन करते हैं, इन्होंने P1 P2 के करके कर दिया। ये सेम है, उन्होंने मतलब सेम चीज को लेकर दूसरा एग्जांपल ले लिया। मैं आगे बढ़ूंगा, उसी चीज पे नहीं फोकस करूंगा, ठीक। नाउ द 3 एड्रेस कोड। व्हाट इज अ 3 एड्रेस कोड? द 3 एड्रेस कोड इज अ टेक्निक टू डिफाइन द इंटरमीडिएट कोड। क्या है ये 3 एड्रेस कोड? को समझता है, जो हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेटर था, ये क्या है? इंटरमीडिएट कोड जनरेटर,
ठीक है, जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है। क्या है? ठीक है, दैट इज रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ठीक है, अभी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर हम लोगों ने अभी समझा। ठीक है, क्या समझा हम लोगों ने इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में? What is an intermediate code generator? It is the interface between front end and back end. Okay, it's provide the temporary register. Okay, इतनी चीजें आप लोग समझ लिए, ये होता क्या और क्या करता है। ठीक, now we have what is your how we can represent this one. Okay, so the first part is a 3 address code. The name of always define itself की 3 address कोड का क्या मतलब है? जहाँ पे 3 एड्रेस है, 3 बार एड्रेस है। किसका किसका एड्रेस होता है सर? ठीक है, एक ऑपरेटर का एड्रेस होगा, this is our operator OP, and each operator that is a binary operator. How would you know this is the binary operator? Because it is because this is associated with the help of a 2 operand. एक ऑपरेंड ये लिया हुआ B and next operand is the C. Is it clear? Why it is known as binary operator? तो कितने एड्रेस हो गए एक ऑपरेटर के लिए, 2 ऑपरेंड के लिए? That is a 3 address. Is it clear? Why it is known as a 3 address? सबको समझ आएगा 3 एड्रेस क्यों कहते हैं इसको? Yes, have you, if anybody have you doubt, please ask the questions. इसीलिए इसको बोलते हैं 3 एड्रेस कोड। इज इट क्लियर? कौन कौन सा 3 एड्रेस होता है? एक ऑपरेटर, 2 ऑपरेंड। इज इट क्लियर? ठीक है, और इसी 3 एड्रेस के बाद हम सबको क्या करता है? टेम्पोररी रजिस्टर प्रोवाइड करना स्टार्ट करता है। ओके, तो एक डायग्राम है जिसका ये कौन सा डायग्राम है? ये डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ है। ठीक है, ये कहाँ हेल्प करता है? जैसे मैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर कर लेता हूँ तो कोड ऑप्टिमाइजेशन के समय ये यूज होता है। ठीक, क्योंकि इसका बेनिफिट अभी हम लोगों ने सीखा है। इज इट क्लियर? तो ये 3 एड्रेस कोड है बिकॉज इन विच द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ए 3 एड्रेस कोड। और जो 3 एड्रेस कोड है इसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए 3 टेक्निक है। कौन कौन से? शिवेंद्र, हैव यू नो? यस, आप जानते हैं शिवेंद्र, रश्मि, शिवेंद्र एंड प्रतिभा? नहीं जानते? चलो मैं बताता हूँ। देखो पहले ये बताओ 3 एड्रेस कोड समझ में आया कि नहीं, फिर मैं टेक्निक बताता हूँ और आगे की। यस, हाँ। देखिए सीधा कॉन्सेप्चुअल है, बस आप पढ़ते जाओ, थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट है बस। कोई अब पार्सर के जैसा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा कुछ। पार्सिंग इज द लिटिल बिट नॉट कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते, बट अगर आप समझ लिए तो बहुत इजी है, नहीं समझे तो दिक्कत है। ठीक, बाकी सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं। यस, यहाँ तक किसी को डाउट है? रश्मि, इज इट क्लियर? रश्मि, प्रतिभा, वंशिका, सबका नाम याद करना है मुझे। हाँ, कुछ ही लोगों का याद है। यस सर। हाँ, समझ में आ गया 3 एड्रेस क्यों कहते हैं? चलो अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप लोग। ठीक है, एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड व्हाई इट इज अ 3 एड्रेस कोड, बिकॉज एक ऑपरेटर होता है, 2 ऑपरेंड होता है। इज इट क्लियर? अब कहीं पे भी देख लो, जब भी 3 एड्रेस कोड होगा, अगर कोई आपसे एक्सप्रेशन देके पूछे कि दिस गिवन एक्सप्रेशन इज अ 3 एड्रेस कोड और नॉट, आपको सीधे सीधे एक चीज देखना है, दिस द टेम्पोररी रजिस्टर। ध्यान से समझो, एवरीथिंग इज अ टेम्पोररी रजिस्टर। इनसे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये टेम्पोररी रहेंगे और निकल लेंगे। हमें क्या क्या चेक करना है? ऑपरेटर। ठीक है, एक ऑपरेटर के साथ 2 ऑपरेंड। देख लो सब जगह सेम है कि नहीं? एक ऑपरेटर है, 2 ऑपरेंड है, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द 3 एड्रेस कोड। इज इट क्लियर? डेफिनेशन से चलो डेफिनेशन। Yes, now we have cleared the read once time definition also. In the 3 address code there is a at most 1 operator. ध्यान से समझिए, देखिए at most मतलब ज्यादा एक ऑपरेटर at the right side of instruction। थोड़ा सा वो घुमाए हुए हैं, आप ये समझो एक that is a 1 operator। ठीक है, at most का क्या मतलब है? एक ऑपरेटर होना चाहिए और at most 2 ऑपरेंड भी होना चाहिए। जैसे अगर मान लिया ये दिया हुआ है -b, मैं कैपिटल बी लेता हूं, इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट कंसीडर इन द 3 एड्रेस कोड और नॉट? -b, देखिए -b एक ऑपरेटर है। हाँ, देखिए अभी राइट यहाँ एक वो है एट मोस्ट, ये डेफिनेशन देखो, एट मोस्ट 1 ऑपरेटर। चलो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, एट मोस्ट 1 ऑपरेटर, at most 1 operator at right side of instruction। ठीक है, राइट साइड होना चाहिए। ये कहां पे है? इसके
लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में है। तो ये एक चीज कोई मुझे ये बताओ कि यहाँ पे माइनस के अगल बगल 2 ऑपरेंट है, ठीक है, और यहाँ पे 1 ऑपरेंट है, तो ये एक्सप्रेशन सही है कि नहीं? अब मैं 3 एड्रेस कोड के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जा सकता है कि इनवैलिड है? हैव यू एनी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट माइनस बी, या गलत है? माइनस बी लिखा जा सकता है वैसे। राइट, माइनस बी एक्सप्रेशन है, ध्यान से समझिएगा आप लोग इस डिफरेंस को। इज इट एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन में काउंट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है, इट इज ए यूनरी ऑपरेटर, इज ए यूनरी। सर T1 इक्वल्स टू A++ ये नहीं होगा 3 एड्रेस कोड? हाँ, इज देयर 3 एड्रेस कोड? T1 इक्वल टू A++। A++। यस सर। हाँ चलो मैं A++ कर देता हूँ। देखिए A++ ये सिर्फ हम रिप्रेजेंट करने के लिए देते हैं। A++ उनका मतलब क्या होता है? A+1। हाँ A+1, यस राइट। A+1 का ये डिफिनीशन होता है बेटा, देखो A, इसका मतलब जो कंप्यूटर समझता है वो, हम जो लिखते हैं उसका नहीं मतलब है। हम किसी चीज को इवेल्युएट करते हैं कि वो, इसका डेफिनेशन ये है, A+1 करेगा और सेम उस वैल्यू को कहां पे स्टोर करेगा? A में। इज इट क्लियर? अब आप खुद ही बता सकते हो ये थ्रेडेड है कि नहीं, समझ गए? इसकी ये डिफिनेशन है। इज इट क्लियर? A+1 करेगा और फिर से ओवरराइट कर देगा A में वैल्यू को, ठीक। ये भी एज ए यूनिरी ऑपरेटर काउंट होता है, जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं ना। देखो किसको हम यूनिरी कहते हैं, किसको नहीं कहते, ये समझिए आप पहले। जहां पे 2 ऑपरेंट यूज नहीं होंगे, एक ही ऑपरेंट यूज होगा, इट इज नोन एज यूनिरी ऑपरेटर। मतलब एक ऑपरेंट क्या कहता है, इस वैल्यू को इन्होंने माइनस कर दिया और हो गया। चलो अगर ये इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो इसको छोड़ भी सकते हो, मोस्टली समझने वाली बात है, सिर्फ यहाँ तक की थी। इतना तक समझ आ गया तो इज इट ओके? बट थोड़ा सा मैंने एलोबरेट इसलिए भी कर दिया कि क्योंकि यूनिरी ऑपरेटर भी आता है इसमें, ठीक है। चलो अब आगे बताते हैं। देखिए 3, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ध्यान से समझिएगा अभी, इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंट करने की टेक्निक क्या थी? 3 एड्रेस कोड। अब 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करने की टेक्निक मैं बता रहा हूं आपको। वेयर इज माय कर्सर? यस यस, ये जो 3 एड्रेस कोड है इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए? दिस इज आवर 3 एड्रेस कोड, ओके। अब इसको मैं क्या करूंगा? रिप्रेजेंट करूंगा। 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करने के भी 3 तरीके हैं, ठीक है। मैं सीधा रिप्रेजेंट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा इस पूरी चीजों को, तो बहुत इजीली आप गेट कर पाएंगे। इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंट करने की टेक्निक 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करने की 3 टेक्निक है। कौन कौन से? क्वाड्रुपल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल। बताता हूँ, देखना पीपीटी में है कि नहीं तो फिर दूसरी स्लाइड से लेनी होगी, ठीक है। क्वाड्रुपल, ट्रिपल एंड इनडायरेक्ट ट्रिपल। आई थिंक फॉर द फॉर्म ऑफ ए 3 डेज, ये देखो सीधे सीधे उसकी एल्गोरिथम दी है जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि 3 ऑपरेंड में उसको फॉर्म करता है। देखिए जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था, तो डेटा स्ट्रक्चर 3 एड्रेस कोड। लेट मी क्लियर वन थिंग कि 3 एड्रेस कोड, ये जो आपसे बता रहा था, 3 एड्रेस कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा स्ट्रक्चर फॉर द 3 एड्रेस कोड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो और इजी लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन ऑफ है, ठीक है। क्या लिखेंगे? रिप्रेजेंटेशन, यू हैव, पूरा आप लिख देंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड। 3 एड्रेस, चलो अच्छा इस पीपीटी में दिया हुआ है 3 एड्रेस कोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड। किस किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? यहाँ पे 3 तरीके से करते हैं। कौन कौन सा तरीका है? एक तो तरीका है सर क्वाड्रुपल, सेकेंड तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ट्रिपल, एंड थर्ड वे फॉर द रिप्रेजेंट इज द इनडायरेक्ट ट्रिपल। कितना टाइम हो गया देखते हैं, उस हिसाब से प्रोसीड करते हैं। ओके 10 मिनट है। तो यहाँ तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं है तो मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। यस, हैव यू एनी डाउट एनीवन और वी प्रोसीड फर्दर? बताइए, अगर आ गया तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर प्रोसीड करते हैं।
Yes, is it clear? Yes, बताओ तो। 10 ही मिनट है बेटा टाइम। आगे प्रोसीड करें या आप बताओ? रश्मि, इज इट क्लियर? यस सर। आगे प्रोसीड करें या किसी को कोई डाउट है? अरे बाकी लोग तो बोलो। वंशिका, प्रतिभा। सर नो डाउट। नो डाउट। हाँ शिवेंद्र, व्हाट इज योर स्टेटस? प्रोसीड करें? कोई डाउट नहीं ना, आगे प्रोसीड करें? चलो अब देखो, समझते हैं ये क्वार्टर पल का क्या मतलब है। क्वार्टर का मतलब समझते हो? कुछ लोग कुछ और समझ जाएंगे। हाँ, क्वार्टर का 4। हाँ, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हो। शिवेंद्र, जानते हैं क्या आप? बताओ। क्वार्टर का मतलब 4 होता है और कोई मतलब नहीं होता जो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है? द ओनली मीनिंग ऑफ ए क्वार्टर इज अ 4, बाकी भूल जाओ, ठीक? 4 का क्या मतलब है? अभी हम जो एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो किस में रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? 3 एड्रेस में। नाउ वी हैव रिप्रेजेंट आवर एड्रेस विद द हेल्प ऑफ ए 4 दैट मीन 4 फील्ड। यहाँ पे लिखो, लिखा है ना 4 फील्ड। कैसे करेंगे अभी मैं करके दिखाऊंगा, देखता हूँ एग्जांपल दे दी हो तो अच्छा होता, नहीं तो करके दिखाता हूँ। अभी तक का क्या था, ध्यान से समझो। ये जो 3 एड्रेस कोड था इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यूज किया था, याद है, ऑपरेटर। इज इट क्लियर? चलो ऑपरेटर पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है? इतना से समझ में आ जाएगा ऑपरेटर। एंड हियर द ऑपरेंड, ओ पी ई आर ए एन। आप लोग सही से लिख लेना, थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। ऑपरेंड हो गया, एक ऑपरेंड यहाँ पे, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2। हियर मेंशन द ऑपरेंड 1, हियर मेंशन द ऑपरेंड 2। ठीक है, 3 एड्रेस यूज हो रहा है, एक ऑपरेंड 1 के लिए, ऑपरेंड 2 के लिए, एंड 1 इज द एड्रेस। बट हियर इज द मेंशन द क्वार्टर। क्वार्टर पल का क्या मतलब है? द क्वार्टर वर्ड इंडिकेट द 4। we have already know quarter indicate the 4, the quarter pal that mean the 3 address code को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 फील्ड की जरूरत पड़ेगी। the name is, what is the name of this field? ऑपरेंड, operator, argument first, argument 2 and result। is it, what is it triple? पढ़ते हैं क्या लिखा है? the temporary or not used and instance reference to the इंस्ट्रक्शन आर मेड। फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं, थोड़ा सा यूनिक है, पढ़ते हैं, ठीक है? टेम्पोररी और नॉट यूनिक, ठीक है? टेम्पोररी और नॉट यूज्ड। अब थोड़ा सा एक वर्ड सुना है क्या आपने? आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर मीनिंग ऑफ ए एम्बेडेड सिस्टम? एम्बेडेड सिस्टम का मतलब समझते? यस, क्या होता है? यस बताओ। माइक्रो कंट्रोलर जो छोटी डिवाइसेस होती हैं, चिप्स, या वो। अरे वो तो ठीक है, इतना टेक्निकल नहीं जाना है, बाकी लोग को देखना है, ठीक है? तो चलो मैं बताता हूँ आपको। देखो, जो एम्बेडेड सिस्टम और सॉफ्टवेयर होता है दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड एम्बेडेड सिस्टम? शिवन? एम्बेडेड सिस्टम पे मेमोरी, रिसोर्सेज, ये सब कम होते हैं। हाँ, और क्या डिफरेंस होता है? यार एम्बेडेड सिस्टम में कई सारी चीजें एक साथ होती हैं, सॉफ्टवेयर में नहीं होती। उसमें फुली फ्लैश ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रन करा सकते। राइट राइट। चलो मैं इतना, आप लोग डायरेक्ट आंसर में बता के घुमा रहे हो ना। घुमाना मतलब ठीक है, बिकॉज ध्यान से समझो, जो एम्बेडेड सिस्टम होता है, एक लाइन में अगर मैं डिफाइन करूं तो जो पावर फेल्योर होता है उससे सिस्टम क्रैश नहीं होता। जैसे ऑपरेटिंग, ठीक है, उसमें रोम क्रैश नहीं होता। रोम क्रैश नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी लॉजिक होती है, जो सारी चीजें, हम उसको क्या करते हैं, आईसी चिप में फैब्रिकेट करते हैं। कैसे फैब्रिकेट करते हैं चलो किसी दिन बताएंगे, बट वो अलग सब्जेक्ट का काम है। विद द हेल्प ऑफ वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। वीएलएसआई एक कोडिंग है, ठीक है? उसकी हेल्प से आईसी चिप में फैब्रिकेट कर देते हैं, उसकी आईसी बना देते हैं, जो भी लॉजिक मुझे डिफाइन करती है, फिर उसको फैब्रिकेट करते हैं उस एम्बेडेड सिस्टम में, या जो भी सिस्टम हम बनाते हैं। तो व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ दिस वन? कि अगर पावर फेल्योर होता है, जैसे ऐसे समझो आप, आपने किसी बच्चे को डमरू बजाता हुआ वो डॉल ऐसे डांस करती देखा है कि नहीं? या मंकी ऐसे डमरू बजाता है, कितने लोगों ने देखा है? बताओ जल्दी जल्दी। ये भी नहीं देखे? बोलो तो। अरे डमरू, मंकी कुछ तो देखा होगा। यस,
रिस्पॉन्ड करो। 7 देखे हो कि नहीं पहले ये बताओ। देखा है। हाँ तो हंसते रहो पढ़ते रहो ना। देखा है। अब जो डमरू बजा रहा है या जो डॉल डांस कर रही है, उसकी कभी ऐसे डांस करते करते बैटरी निकाले हो? बदमाशी की हो ये वाली? की हो? निकाल दियो ना। अब ध्यान से समझना है, इसकी टेक्निक को समझना जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो जैसे ही उसकी बैटरी निकालता है, तो जहां पे वो डमरू वाला ऐसे हाथ उठाए रहता है ना, वहीं पे रुक जाता है। ठीक। और फिर से बैटरी लगाओगे तो फिर से डमरू बजाने लगता है वहीं से। अब मैं बात, ये होता है एम्बेडेड सिस्टम, क्योंकि जो उसकी प्रोग्रामिंग है वो फिक्स है। पावर फेल्योर होने पे क्या हो रहा है, वो अपने जो प्रोग्राम है उसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ आपकी कंप्यूटर सिस्टम की। फॉर एग्जाम्पल, आप डेस्कटॉप यूज कर रहे थे, ठीक है, और उसमें यूपीएस भी नहीं था, मतलब कोई बैटरी पावर सपोर्ट नहीं था, ठीक है। आप वीएलसी पे गाना भी सुन रहे थे, आप नोटपैड पे काम कर रहे थे, आप प्रोग्रामिंग भी कर रहे थे, ठीक है। जैसे ही पावर फेल्योर होगा, सिस्टम शट डाउन हो गया। ओके। अब फिर से हम ओपन करते हैं तो सारा प्रोग्राम फिर से ओपन करना पड़ता है कि जहां से स्टार्ट किया तो वहीं से रहता है? प्लीज बताओ। लॉस हो जाती है इतनी भी रैम में लॉस हो इंसान जाती है, फिर से स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर है। तो पावर फेल्योर होने पे सॉफ्टवेयर क्रैश होने का खतरा उसमें बना होता है, यहाँ नहीं होता। तो जो ट्रिपल, जो ये मैं क्यों एग्जांपल लिया मैं आपको बता रहा हूँ, जो ट्रिपल पल होता है ना, वो कुछ इसका टेम्प, ये लाइन जो लिखा है, टेम्पोरी और नॉट यूज्ड, इस काम को इन्होंने क्या करता है, एम्बेडेड सिस्टम के तरीके से काम करता है, इसलिए मैंने इतना लंबा एग्जांपल लिया। रेफरेंस वेरिएबल यूज कर लेते हैं, यस यस जैसे यस, सी लैंग्वेज में होता है। राइट राइट, ठीक है, रेफरेंस यूज करते हैं। अभी मैं एग्जांपल करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो। सिर्फ बैकग्राउंड समझाने के लिए मैंने आपसे बोला है। आई हैव द स्टिल 5 मिनट, ओके। द टेम्पोररी और नॉट यूज फॉर इंस्टेंट रिफर टू द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ओके। थर्ड क्या है? थर्ड है हमारा इनडायरेक्ट ट्रिपल। इन एडिशन टू द ट्रिपल वी यूज द लिस्ट ऑफ ए पॉइंटर ऑफ ए ट्रिपल। यहाँ पे क्या है कि ट्रिपल को हम डायरेक्ट यूज कर सकते थे, यहाँ पे ट्रिपल का जो टेबल है वो डायरेक्ट नहीं यूज करेंगे, एक उसके क्या करा लेंगे, ऐसे समझो, ऐसे कर लेंगे। जैसे एक बॉक्स बना हुआ है, इस एड्रेस पे ये रखा हुआ है, इस एड्रेस पे ऐसे मैं बना दूं फॉर एग्जांपल ये रखा हुआ है, और इन सब के लिए क्या है ना, एक टेबल बना हुआ है, ठीक। तो एक ऐसा समझो इंडेक्सिंग टाइप का कर दिया है, इस पे ये एड्रेस है, इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ उसकी इंडेक्स की वैल्यू है, ओके। तो डायरेक्ट उस इंडेक्स से वैल्यू से उस टेबल को कॉल कर लेंगे, इसको इनडायरेक्ट ट्रिपल बोलते हैं। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू द ट्रिपल वी यूज द लिस्ट ऑफ ए पॉइंटर ऑफ ए ट्रिपल। अभी एक एग्जांपल लेते हैं तो ये चीजें क्लियर होंगी। यस, आई थिंक एग्जांपल है क्या? यस, एग्जांपल है, समझते हैं इसको। दिस इज द एग्जांपल हियर, विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड, कि इसको समझ के ही आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, कि ये तीनों है क्या। ये है एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे हम क्या क्या समझ रहे हैं ये पहले ध्यान से समझो लो। पिछला वाला डायग्राम देख लो। हियर वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वार्टरपल। पहले तो क्वार्टरपल समझेंगे क्या होता है। क्वार्टरपल का मतलब क्या है, जिसको 4 वे में रिप्रेजेंट करते हैं, 4 पैरामीटर होंगे, हमने पहले ही पढ़ा, क्वार्टर का मतलब 4, ओके। उसके बाद ट्रिपल। ट्रिपल में क्या होता है, कुछ वेरिएबल हटा के टेम्पोररी वेरिएबल हम कुछ यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिपल एज एम्बेडेड सिस्टम के तरीके से भी मैंने एग्जांपल दिया था कि टेम्पोररी और नॉट यूज इंस्टेंस रेफरेंस टू द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। तो इस लाइन को भी एग्जांपल से क्लियर करेंगे, सेकंड वाली लाइन को। इनडायरेक्ट ट्रिपल क्या होता है कि हम डायरेक्ट यूज ना करके एक इनडायरेक्ट उसके पॉइंटर के वेरिएबल से यूज करते हैं। चलो समझते हैं इसको, ठीक है। ये एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक। इस एक्सप्रेशन पे मुझे 3 एड्रेस कोड निकालना है। 1 सेकंड। यस, हियर वी हैव रिपीटेड द 3 एड्रेस कोड। अब हमें बताओ 3 एड्रेस कोड के लिए हमने क्या चूज किया, -c। हमने ये देखो, ये पूरा 3 एड्रेस कोड है कि नहीं, इसका सबके लिए 3 एड्रेस कोड इन्होंने डिफाइन कर लिया। क्या कर लिया, -c, ये देखो इसको, ठीक है। इन्होंने ऐसे चूज करते चले गए, -c को चूज कर लिया, -c को चूज कर लिया। एक माइनस है, ये यूनिरी ऑपरेटर के तरीके से दिया हुआ है -c, इसको T1 में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। दिस पोर्शन इज क्लियर एंड इट इज आल्सो कंसीडर्ड द 3 एड्रेस कोड, बट इज अ मिनिमम लिमिटेशन ऑफ ए 3 एड्रेस कोड कि एक ऑपरेटर होना चाहिए मिनिमम, उस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एक ऑपरेंड चलता है, यूनिरी ऑपरेटर भी काउंटेबल होता है। एंड b मल्टीप्लाइज दिस T1, इसको हमने क्या किया, एक टेम्पोररी रजिस्टर T1 में इंसर्ट कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया, T1 को कॉल किया और फिर इस b वाले ऑपरेटर को यूज करते हुए इस चीज को रिप्रेजेंट किया हमने T2 से। इज इट क्लियर? ठीक है। अब हमने क्या किया, -c ले लिया, तो इसके लिए हमने रिप्रेजेंट किया T3 यूज कर लिया सर, ठीक है।
और T3 रिप्रेजेंट करने के बाद जो ये B वाला पोर्शन था B4 एंड दिस वन वी हैव रिप्रेजेंट द T4। क्लियर है सबको? T4 से रिप्रेजेंट कर लिया एंड आफ्टर द दिस T4 एंड T2 दिस वन देयर इज अ वन ऑपरेटर प्लस, तो हमने T5 में डाल दिया और उसके बाद फिर से इसको असाइन कर दिया किसमें? A में। इज इट क्लियर? दिस इट इज द 3 एड्रेस कोड। ये अगर पूरा डायग्राम की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरमीडिएट कोड मेंशन हियर द G, इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है। ये कौन सा है? रिप्रेजेंटेशन टेक्निक है। तो जनरली इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा कि रिप्रेजेंटेशन टेक्निक के लिए ये बताइए, आपसे सीधे सीधे नाम देके पूछता है कि रिप्रेजेंट द 3 एड्रेस कोड, रिप्रेजेंट इन क्वार्टरपल, रिप्रेजेंट इन ट्रिपल, रिप्रेजेंट इन इनडायरेक्ट ट्रिपल। ठीक है, तो 3 एड्रेस कोड समझ में आ गया कि 3 एड्रेस होना चाहिए, 3 से ज्यादा एड्रेस नहीं रखना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ क्वार्टरपल की। ओके, क्वार्टरपल का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी समझा था। क्वार्टर का मतलब 4 में क्या क्या पैरामीटर होंगे ये चीजें भी क्लियर थी। एक ऑपरेटर होगा। अब पहली लाइन में आप देख के मुझे बताइए कि आई थिंक इसका कलर भी चेंज होगा। फर्स्ट लाइन में जो ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर है? कौन सा ऑपरेटर है शिवेंद्र? माइनस। इज इट क्लियर? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझ रहा हूँ। इसकी सिर्फ इसी को देखना, बाकी छोड़ दो। अभी इसमें माइनस है, हमने लिख लिया माइनस। इज इट क्लियर? दिस लाइन की बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। अब क्वार्टरपल में कैसे लिखते हैं, बस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, माइनस लिख दिया। यहाँ पे आर्गुमेंट फर्स्ट में क्या ऑपरेटर है? एक ऑपरेटर है सी, हमने यहाँ पे सी लिख दिया। यहाँ पे हमने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि दूसरा कोई ऑपरेटर नहीं है। इसको सेव कहाँ किए थे? T1 में। यहाँ पे क्या लिख दिया? T1। इज इट क्लियर? क्वार्टरपल क्लियर हो गया? चलो दूसरा लिखते हैं, फिर और क्लियर हो जाएगा। अब मैं चूज करता हूँ दिस वन। ठीक है, इसमें क्या है? कौन सा ऑपरेटर है? कौन सा ऑपरेटर है? बी। ये मल्टीप्लिकेशन ना? ऑपरेटर पहले लिखेंगे तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे ऑपरेटर पहले लिखते हैं। तो हमने लिख दिया ऑपरेटर मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या हुआ? B एंड T1, और स्टोर कहाँ पे हो रहा है वो? T2। देखो ऊपर लिखा हुआ है T। इज इट क्लियर? सेकंड वन। चलो थर्ड वन देखते हैं। यहाँ पे माइनस हो गया, C हो गया, ये ब्लैंक है। ये सेम इसी तरीके से हम सबको लिख दिया। इज इट क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया क्वार्टरपल में क्या करते हैं? यस, या हैव यू एनी डाउट? फिर मैं आगे बताऊंगा आपको। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ, समझ में आ गया कि नहीं क्वार्टरपल? शिवेंद्र? यस। हाँ रश्मि, प्लीज एक लोग और करो, फिर मैं आगे मूव करता हूँ। यस, रश्मि, प्रतिभा, वंशिका, तीनों में से कोई एक बताओ। समझ में आया? यस सर। हाँ, आई थिंक वंशिका की रश्मि? सर वंशिका। वंशिका, यस। चलो दो लोगों को आ गया तो समझ में आ रहा सबको। ठीक है, अब देखो क्वार्टरपल हो गया। अब मैं ट्रिपल की बात करता हूँ। ट्रिपल में क्या हुआ? एक टेम्पोररी वेरिएबल को इन्होंने हटाया है। ट्रिपल का मतलब क्या है? ट्रिपल मतलब 3, समझते हो ना? ट्रिपल का मतलब 3। अब इन्होंने देखो क्या किया? ऑपरेटर को चूज किया। ठीक है, आर्गुमेंट फर्स्ट को चूज किया, सेकंड को चूज कर लिया, और इस रिजल्ट वाले को हटा दिया। उनको लग रहा है कि सब में तो यूज ही करते हैं, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? फिक्स किया। आपने देखा होगा जब मैं ट्रिपल का एग्जांपल बता रहा था, मैंने एम्बेडेड सिस्टम की तरीके से बताया था। तो इन्होंने एक लोकेशन टेम्पोररी रजिस्टर के लिए फिक्स ही कर दिया, 0 1 2 3 4 5 करके, जो भी आएगा इस पर सेव हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से चला जाएगा। हम कोई रन टाइम पे कोई टेम्पोररी वेरिएबल एलोकेट नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? तो इन्होंने क्या किया? देखो यहाँ पे सिर्फ सिंपल है, माइनस को लिखा, सी को लिखा, और ये सेकंड वाला आर्गुमेंट कुछ है नहीं, छोड़ दिया। और इसको स्टोर कहाँ किया? जैसे यहाँ पे देखो T1 पे स्टोर कर रहे थे, इन्होंने फिक्स कर दिया ये लोकेशन। देखो इनडायरेक्टली इन्होंने फिक्स कर दिया कि भैया एक 0 नाम का एक लोकेशन है, वहां पे तुम टेम्पोररी वेरिएबल अपना स्टोर कर सकते हो। इसलिए मैंने आपको इसको सॉल्व करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम का एग्जांपल दिया था। सेकंड वाले लाइन पे जाइए। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे ऑपरेटर क्या था? मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर दैट आर्गुमेंट दिस वन, इसको सीधे सीधे कॉपी किया B को। ठीक है, अब ये सारी चीजें, ठीक है, ये करने के बाद हाँ ये लाइन को देखो तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे देखो जो T1 है ये उठ के आया था, ध्यान से समझे। ये T1 जो है, मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ, ये T1 यहाँ गया था। ठीक है ना, ये T1 यहाँ पे आया था। तो इसका क्या मतलब है? ये टेम्पोररी मेमोरी एड्रेस जाएगा। राइट। हाँ, T1 यहाँ से यहाँ आया था, तो हमने तो T1 वेरिएबल उसमें लिखा था, बट यहाँ पे T1 वेरिएबल नहीं है ना, उसका एड्रेस है।
तो हमने यहाँ पे 0 का एड्रेस ले लिया। इज इट क्लियर? ब्रैकेट में करके लिख देता है। इंडेक्सिंग जिन लोगों ने पढ़ी होगी थोड़ा थोड़ा पता होगा, समझ में आ रहा है? तो इसका एड्रेस ले लिया। सेम काम इन्होंने बाकी के लिए करते चले गए, 0 हो गया, माइनस हो गया, जहां पे भी जिसका एड्रेस जरूरत पड़ी ऐसे ब्रैकेट में करके 2222 एड्रेस कर लिए। अब देखो हम मेमोरी 4 से 3 पे आ गए, इसको भी सेव कर दिया, इसको भी कर दिया। ठीक है, ट्रिपल क्लियर हो गया सबको? इज इट क्लियर? चलो अब इनडायरेक्ट ट्रिपल भी पढ़ लेते हैं, फिर रिवीजन करेंगे। सर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई और है ना, इसको 30 सेकंड में समझ लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए फिनिश करते हैं। देखिए इनडायरेक्ट ट्रिपल का क्या मतलब है, ये पूरा चीजें सेम है। ये उठ के मैं यहाँ आ गया, ये उठ के यहाँ आ गया, ये इट इज सेम। एक यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक एड्रेस एलोकेट कर लिया और ये ऑपरेटर के लिए सबके लिए एड्रेस लिख दिया 0 1 2 3 4 5, जिसको जैसा जरूरत होगी यहाँ से वो फेच कर लेगा। इंडेक्सिंग कर दिया उसका। इज इट क्लियर? यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं थी, यहाँ पे इंडेक्सिंग कर लिया कि यहाँ पे पूरा पूरा टेबल को रखना पड़ता था, वहां पे जिस पर्टिकुलर जिसकी भी जरूरत होती जिस एड्रेस पर जिस भी पॉइंटर को, वहां पे हम डायरेक्टली इसका एड्रेस करते थे, फिर उसी के करस्पॉन्डिंग इंडेक्स कर देते थे। इज इट क्लियर? चलो ठीक है, वी हैव अ मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इट इज गुड, just discard this one and just take 1 second, stop recording.